Welcome to I'll Sleep. Today I'm gonna share a cue card called Describe a piece of international news that you have heard recently. Actually, this is a new cue card that is listed in Jan to April 2021 list. So you can easily get to know that how you can make the ideas with the help of the sample answer. Alright, now I would start my cue card by saying this. To be honest, I have never been into reading and watching news, but when a farmer protest against some agricultural bills started in my country, my interest in watching news was fostered. These days, I would say I have been a frequent YouTube viewer just because of getting updates regarding the protest. Anyway, a couple of days ago, when I was watching news on YouTube, I got a clickbait thumbnail where American President Donald Trump's name was mentioned with some sort of violence in America. And as we all know that Donald Trump has always been famous for his controversial tweets, so I couldn't stop myself to open it. When I started watching that news, I was pretty shocked because some Americans were behaving violently inside a government building called Capitol Hill. Basically, it is a place where the United States Congress holds the sessions. In that video clip, angry mob of Trump supporters broke into that building after breaching the barricades and were smashing windows. And the most devastating thing was happened that 5 people lost their lives in this riot. Initially, I couldn't find the reason they were creating mess for, but after watching further, I got to know that it was all about the 2020 presidential elections in America, where Donald Trump was defeated by his opponent. So, the people who were in his support were claiming that election process and results were unfair. On the other hand, many leaders pointed a finger at Trump for inciting violence because after the result, he addressed the public and manipulated their minds, which caused violence. After all this mess, all social networking sites suspended his account, including Twitter, Instagram, and Facebook. And within no time, he was impeached by the US authorities. I think it took probably a week to do so. And all in all, it was such a dark day in American history. You can see that I have used different colors here, red, green, and blue, right? I have used red color here for fluency and coherency. यहाँ पे हमें ये चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि फ्लुएंसी और कोहेरेंसी एक बहुत ही अहम हिस्सा है आपकी स्पीकिंग का। जब भी आप स्पीकिंग देते हैं तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो आपकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितना फास्ट बोल रहे हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जब आप अपने सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जब आप कुछ कह रहे हैं, तो जो आपके सेंटेंसेस है उनका आपस में लिंक कैसा है और आप जिस टोन में उसे कहना चाह रहे हैं, क्या उस टोन के अकॉर्डिंग आप वहां पे परफेक्ट गैप फिलर्स या जो भी वर्ड्स और लिंकर्स हैं उनका सही यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, ताकि आपकी जो भी फीलिंग्स है, जिस फीलिंग से आप ये बताना चाह रहे हो, किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपका अगर गैप फिलर्स और जो कनेक्टर्स है अगर वो सही जगह पर लगेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्लुएंसी में बैंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज्ड हियर वेल, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मैंने वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आगे मेरा जो सेंटेंस है वो ये है कि मैं कभी भी रीडिंग और वॉचिंग मीन्स जो न्यूज है, मैं कभी भी न्यूज को देखने और उनको पढ़ने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ। सो टू बी ऑनेस्ट एक एज अ फ्रेज है जो कि हमारी टोन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। गॉट इट? यहाँ पे मैंने आई वुड से यूज किया है। यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, आई एंड कॉमा अपोस्ट्रोफी एंड डी, इसका मतलब है आई वुड। ओके, आई वुड से। सो इसे हम शॉर्ट में कहते थे आई वुड से। यहाँ पे एनीमे का यूज हमने इसलिए किया है कि हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। ओके, एंड सो का मतलब आपको पता ही है। फिर बेसिकली वर्ड हमने यूज किया है। बेसिकली मतलब सिंपली तौर पे अगर हम बात करें तो मैंने उसके लिए बेसिक, साधारण तौर पे, जनरली, बेसिकली। ओके, तो ये आप एक कनेक्टर है जो आप इसे पुट कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ऑन द अदर हैंड हम सिर्फ राइटिंग में ही यूज कर सकते हैं। गॉट इट? कि जैसे टास्क 1 में या टास्क 2 में। बट डोंट फॉरगेट कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर ऑन द अदर हैंड जो है वो राइटिंग में यूज किया जा सकता है, सो व्हाई डोंट वी यूज इन स्पीकिंग? ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। सो दूसरी ओर के लिए हम अगर बोलेंगे तो भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर हम लिखेंगे तो भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम का मतलब होता है जब हम किसी बात को कहते हैं बहुत ही जल्दी। जब कोई काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, जब कोई काम ज्यादा समय नहीं लेता है, तो हमें कह देते हैं उसको विद इन नो टाइम। तो ये भी एक फ्रेज है। और यहाँ पे एक वर्ड है प्रॉबेबली,
और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ओके। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम बहुत ही सर्टेन नहीं होते हैं, आई मीन कि हम बहुत ही डेफिनेट नहीं होते उस चीज के बारे में, लेकिन कुछ हद तक, कुछ अंदाजे तक, जब हम अंदाजे की बात करते हैं तब हम ये वर्ड रखते हैं, ओके। इसको हम शायद के रूप में भी बोल सकते हैं कि इट्स लाइक शायद, लेकिन फिर भी प्रॉबेबली ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो फॉरेनर्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, आप अगर ध्यान से उनको सुने तो वो बहुत सारे जो सेंटेंसेस है उनमें प्रॉबेबली का यूज करते हैं। ये आपके टोन को बताता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो वो आप किस लहजे में कह रहे हो। जैसे यहाँ पे आई थिंक इट टुक प्रॉबेबली अ वीक टू डू सो, तो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा अंदाजा है, इस चीज को करने में 1 वीक लगा, ओके। सो जहां तक मेरा अंदाजा है उसके लिए इतना लंबा फ्रेज देने की हमें जरूरत नहीं है। प्रॉबेबली ऑटोमेटिकली हमारे जो भी हमारी टोन है, जो हम एक्चुअल में कहना चाह रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि प्रॉबेबली जैसा वर्ड आप अपने सेंटेंसेस में जरूर यूज करें, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर तक ये मैसेज पहुंचता है दैट यू आर क्वाइट गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। आपको फ्रेजिंग, आपको टोन, आपको पता है कि मुझे किस तरीके से अपनी बात को रखना है। जितने भी रेड कलर में आपको यहाँ पे वर्ड्स नजर आ रहे हैं वो सारे आपकी फ्लुएंसी और कोहेरेंसी को ही डिनोट कर रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने हर एक, चाहे वो क्यू कार्ड है, चाहे वो पार्ट 3 क्वेश्चंस है, चाहे वो पार्ट 1 क्वेश्चंस है, अपनी टोन को बरकरार रखने के लिए आपको इन चीजों का यूज करना है। इनको हम गैप फिलर्स भी बोल देते हैं। इसमें बहुत सारे गैप फिलर्स भी हैं, जैसे एक्चुअली एक गैप फिलर है, और बहुत सारे कनेक्टर्स भी हैं और फ्रेजेस भी है। नाउ कम टू द ग्रीन कलर। अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे ग्रामर को डिनोट किया है। तो अगर आप देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा आई हैव नेवर बीन इनटू, नेवर बीन, हैव भी लगा है साथ में, ये ग्रामेटिकल रेंज है। इसका मतलब कि अभी तक मैं इस चीज में नहीं रही हूं, ऐसे बात करनी होती है, देन यू कैन यूज आई हैव नेवर बीन। इनटू, नाउ कौन से काम में नहीं है आप, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पास्ट और प्रेजेंट जो है इसका बहुत ही डिफिकल्ट सा गेम है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उन्हें पता तो है कि हमें यहाँ पे पास्ट यूज करना है, बट जब वो बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग सेशन, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो पास्ट चीजें होती है वो प्रेजेंट में चली जाती है, ओके। तो इन चीजों का ध्यान रखें। उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसमें जो भी आपके फॉल्स हो रहे हैं उस पर काम करके उसे और ज्यादा रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन एक और हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इन ग्रीन, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है, और जब भी आप पास्ट की बात कर रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वो काम करने से, देन यू कैन यूज दिस थिंग, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। टू और आगे वो वर्ब आ जाएगी। जो भी काम करने से आप अपने आप को नहीं रोक पाए, वो काम का नाम आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ओपन यूज किया है, यू कैन यूज एनी वर्ब और एक्शन। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, जैसे लॉस्ट देयर लाइव्स, राइट, और वर क्रिएटिंग, ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी। एक जगह पे हमने वॉज के साथ डिफीटेड मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, क्योंकि यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में आया है कि डोनाल्ड ट्रम्प वॉज डिफीटेड बाय, तो ये एक पैसिव वॉइस निकल के आ रही है। गॉट इट। कुडंट का यूज किया है हमने, कुड, कैन की जगह हमने कुड का यूज किया है, ओके। पॉइंटेड, कॉज्ड, सो ये जितनी भी चीजें हैं, इट टुक, कई बार बच्चे क्या करते हैं टेक बोल देते हैं। सो टेक क्या है, वो एक प्रेजेंट है कि वो चीज इतना लेती है, और इट टेक्स नो, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये काम हो चुका है, सो वी हैव टू से इट टुक, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट कलर, दैट इज ब्लू। और ब्लू कलर में जितने भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, दोज आर शोइंग द लेक्सिकल रिसोर्सेज, ओके। यू माइट नो अबाउट दिस कि लेक्सिकल रिसोर्सेज हम किसे बोलते हैं, हम वोकैबुलरी को लेक्सिकल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला वर्ड है फोस्टर्ड। फोस्टर्ड यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है किसी चीज का पैदा होना, ओके। जैसे किसी आइडिया का आपके माइंड में आना, कोई भी संस्कार जैसे हैं, जैसे माँ बाप है वो अपने बच्चों में संस्कार भरते हैं, तो वो दे फोस्टर दी वैल्यूज, ओके। तो फोस्टर पैदा होना, उत्पन्न होना, इन सारी चीजों के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्लिक बिट थंबनेल। अगर आप YouTube पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि क्लिक बिट थंबनेल क्या होता है। थंबनेल एक्चुअल में क्या है, ये एक पिक्चर होती है जो किसी भी वीडियो को डिनोट करती है, जिसको देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये वीडियो देखनी है या नहीं, या हमारे इंटरेस्ट की है या नहीं, ओके। तो क्लिक बेट का मतलब क्या होता है, क्लिक बेट होती है ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करे,
जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंदर चाहे कोई भी मटेरियल हो मगर बाहर उसका जो थंबनेल है, वो पिक्चर है, वो ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी यूजर्स पहले उसको क्लिक करके देखते हैं कि देखूं तो सही कि इसमें अंदर है क्या। गॉट इट? तो ये एंटाइज करने के लिए, ये अट्रैक्ट करने के लिए होता है यूजर्स को। नेक्स्ट है सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है या टाइप ऑफ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया सॉर्ट ऑफ वायलेंस। कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स का मतलब होता है, कंट्रोवर्शियल होता है कोई भी चीज जो बहुत ही विवाद में रहती है, और ट्वीट्स एज वी नो दैट, हम अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो हम यहाँ वहां पे जो भी कमेंट्स करते हैं उन्हें हम ट्वीट्स बोलते हैं। मोब ऑफ, मोब का मतलब होता है भीड़। ओके, भीड़, क्राउड के लिए आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू का यहाँ पे मतलब है जबरदस्ती घुसना, तो उस बिल्डिंग में वो जबरदस्ती घुसे जो भीड़ थी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीचिंग द बैरिकेड्स। ब्रीचिंग जो है उसका मतलब होता है उल्लंघन करना, एंड बैरिकेड्स ये आपको पता ही होगा क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जो वायरल हुई है, जहाँ पे जो फार्मर्स है उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े थे। ओके, तो उससे आप पता लगा सकते हैं व्हाट आर बैरिकेड्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्मैशिंग विंडोज। यहाँ पे स्मैशिंग विंडोज का मतलब है कि जो विंडोज थी उनको झटके से तोड़ा गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब है बहुत ही बुरा। नेक्स्ट वर्ड इज राइट। राइट्स का मतलब होता है दंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज मेस। मेस का मतलब है कि जब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं तो उसे हम बोल देते हैं कि ये मेस हो गया है, यहाँ पे मेस हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, जो उनके विरोध में खड़ा था, जो उनके अगेंस्ट खड़ा था। नेक्स्ट वर्ड इज इंसाइटिंग वायलेंस। इंसाइटिंग वायलेंस का मतलब है कि वायलेंस को फैलाना, उसे बढ़ावा देना। ओके, तो ये पॉइंटेड अ फिंगर मीन्स जो डोनाल्ड ट्रंप है उस पर ये उंगली उठाई गई कि उसने क्या किया है, जो भी वायलेंस हुई है उसको बढ़ावा दिया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एड्रेस्ड द पब्लिक। इसका मतलब है कि पब्लिक के सामने आना और अपनी बात कहना। ओके, एंड मैनिपुलेटेड देयर माइंड्स का मतलब है कि उनके जो माइंड्स हैं उनको बहकाना, मीन्स उनको अपनी बातों में लेकर आ जाना कि जो भी मैं कह रहा हूं वही चीज सच है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया है हमने, मैनिपुलेटेड देयर माइंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड एज वी नो दैट, सस्पेंड का मतलब है कि कुछ समय के लिए कोई चीज को रोक दिया जाता है, उसको उसकी ड्यूटी से, उसके उस काम से हटा दिया जाता है ताकि वो चीज उस टाइम तक, किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक काम नहीं करेगी, उसे हम सस्पेंड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीच्ड। इम्पीच का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, तो यहाँ पे ही वॉज इम्पीच्ड बाय द यूएस अथॉरिटीज, मीन्स यूएस अथॉरिटीज ने डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया इन सारी चीजों के लिए। ओके, now the explanation is done here. I hope you found this video lesson helpful. I'll meet you in my next video with more useful stuff. Till then, keep learning, keep speaking.